मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? इन दिस सेशन वी डूइंग क्वेश्चंस ऑन ट्रायंगल्स दैट हैव अपीयर्ड इन आईपीएमएट एग्जामिनेशन. ठीक है, एक और सेशन हमने ट्रायंगल्स का लिया है, तो वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस है इसके. यू शुड चेक आउट दैट सेशन एज वेल. स्टार्ट करते हैं सेशन, एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू आवर चैनल, then make sure to subscribe to channel. Also press the bell icon, and you can also message me on Telegram at ADITYAKT and join the WhatsApp channel. Link description में checkout कर सकते हो. So first question is from IPMAT 2024. Pause the video and try to solve it. Let triangle ABC be a triangle with AB is equal to AC and D be a point on BC such that angle BAD is equal to 30 degrees. If E is a point on AC such that AD is equal to AE, तो angle CDE का value क्या होगा? Let us form the triangle first. So this is the triangle ABC. The only condition is that AB and AC are equal. So AB and AC, these two are equal. And D is a point on BC such that angle BAD is 30 degrees. So this is point D, and this angle here, this is 30 degrees. Additionally, E is a point on AC such that AD and AE are also equal. So E is a point such that AD and AE are equal. So this is AD, and AD and AE are equal. Okay. Now in any isosceles triangle, if two sides are equal, then angles opposite are also equal. Okay, if in a triangle ABC, AB and AC are equal, in that case, angle ABC will be equal to angle ACB, or angle B will be equal to angle C. तो सेम लॉजिक अप्लाई होगा यहाँ पे. ठीक है, कि एंगल B will be equal to angle C because AB is equal to AC. Similarly, AD is equal to AE. So in triangle ADE, angle ADE will be equal to angle AED. So these two angles will also be equal. बट हमें क्वेश्चन में चाहिए एंगल CDE का वैल्यू क्या होगा. वी नीड टू फाइंड आउट एंगल CDE हियर. सो कुछ वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं. लेट अस से कि एंगल ABC, this is equal to x. Okay, this is equal to x. So if angle ABC is equal to x, angle ACB, that will also be equal to x. Okay, then angle ADE, let us say that is equal to y, and angle AED, that is also equal to y. और जो एंगल हमें चाहिए, let us say that is equal to थीटा. तो अब अननोन मान लिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो इफ in triangle ADE, this angle is y, this angle is y, so what will be value of angle DAE? But in triangle ADE, this angle will be equal to 180 minus 2y, because sum of all the angles, that is equal to 180. So 180 minus 2y हो जाएगा. 180 minus 2y हो गया. So अब फोकस करो on triangle ABC, because sum of all the angles in triangle ABC in any triangle is 180 degrees. So 30 plus 180 minus 2y plus x, this is equal to 180. 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, तो 2x minus 2y plus 30 is equal to 0. Or we can say that y minus x, this is equal to 15 degrees. So हमें इक्वेशन मिल गया y minus x, that is equal to 15 degrees. Okay, ठीक है. Now observe in triangle CDE. So in triangle CDE, angle AED is external angle. Isn't it? Angle AED, that is external angle. So that is why, since angle AD is external angle, this angle here, this is external angle. So value of angle ADE will be equal to angle EDC and angle ECD. So y will be equal to theta plus x, hence theta will be equal to y minus x, or y minus x already is equal to 15 degrees, so theta will be equal to 15 degrees. This will be our answer. Option D आंसर हो जाएगा, that theta should be equal to 15 degrees. Angle CDE should be equal to 15 degrees. क्या ये क्लियर है?
ओके, ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब एक और मेथड देख लेते हैं, जुगाड़ मेथड, जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली वैल्यूज एज्यूम करके, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी और कंडीशन नहीं है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है हमारा ट्रायंगल एबीसी, कैन बी इक्विलैटरल ट्रायंगल, कैन बी सम अदर ट्रायंगल, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हो, बिकॉज ए बी और ए सी इक्वल है, तुम बी सी को भी इक्वल कर सकते हो, कुछ भी कंडीशन मान सकते हो अपने एंड पे, ठीक है। बस जो प्राइमरी कंस्ट्रेंट है क्वेश्चन का वो सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट ए बी शुड बी इक्वल टू ए सी, एंगल बी ए डी शुड बी इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड सो ऑन, सो दोज कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, इजंट इट सो? बाकी कुछ भी हम अपने एंड पे एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगेन फॉर्म करते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड देन बी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। मान लिया हमने कि ए बी सी दैट इज अवर इक्विलैटरल ट्राइंगल, सो इफ दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, दीज एंगल्स आर 60, ठीक है, सारे एंगल 60 हो गए हमारे, और 30 डिग्री आ रहा है बी ए डी, 30 यानी कि हाफ ऑफ 60, सो ए डी विल बी परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज 30, so this will also be here 30. Now AD equal to AE, so if AD and AE are equal, in that case 30 एंगल तो हमारा यही है, एंगल DAE, so remaining angles इक्वल होंगे, और दोनों का सम आ रहा है 150, so वन एंगल विल बी 75, दिस विल ऑल्सो बी 75, और ऑलरेडी हमने क्योंकि 30 था तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज 90, 75 में बचा हुआ 15 आ जाएगा, और अदरवाइज क्लिक नहीं किया होता ये बात, तब भी हमें पता था कि दिस एंगल इज 75, दिस इज 60, और ये एंगल हमारा क्या होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ई डी सी या सी डी प्लस एंगल ई सी डी, यानी कि ई डी सी हमारा थीटा मान लिया, तो थीटा प्लस 60 है 75, तो थीटा इज इक्वल 15 डिग्रीज आ गया। ओके, हालांकि ऐसे सच हमें यहाँ पे इक्विलैटरल एंगल मानने का कोई ऐसा जरूरत नहीं था, कुछ भी और एंगल मानते तभी हमारा काम चल जाता, तो वो भी एक एग्जांपल देख रहे थे, कुछ भी रैंडम वैल्यूज मान लो यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम आंसर लिए वैल्यूज क्या मान रहे हो, वैल्यूज कुछ भी मानो चलेगा, सब कुछ चलेगा। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ और फर्दर कंस्ट्रेंट नहीं हो, ठीक है, जहां से कि कुछ भी डायग्राम बना सकते हो, तो कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, मान लो कि दिस एंगल इज लेट अस से इक्वल टू 50 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 50, दिस विल आल्सो बी 50 डिग्रीज, ओके, नाउ दिस इज 50, दिस इज 50, ये एंगल क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, 50 प्लस 50 100 प्लस 30 130, तो दिस एंगल विल आल्सो बी 50, ये 50 आ जाएगा, ठीक है, एंड देन दिस एंगल इज 50 एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल, सो सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 130, सो एक एंगल आ जाएगा 65, दिस इज 65, दिस इज 65, और दिस इज एक्सटर्नल एंगल, सो दिस इज 65, दिस इज 15, दिस मस्ट बी इक्वल टू, दिस इज 50, दिस मस्ट बी इक्वल टू 15 डिग्रीज, तो आंसर हमारा मिल गया हमको। सो दिस इज बेस्ट अप्रोच इन एनी सच क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ कि अननोन एज्यूम करके पूरा इक्वेशंस बना के सॉल्व करो, कोई भी रैंडम वैल्यू एज्यूम कर लो, अगर फर्दर कंस्ट्रेंट्स गिवन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, let triangle ABC be a triangle that is right angle triangle, and that is right angle at B with AB and BC equal to 18, then area of the largest rectangle that can be inscribed in this triangle and has B as one of the vertices, क्या होगा? Again it is formed the diagram first of all, the triangle ABC right angled at P, and AB and AC are equal, both are AB and BC are equal, both are equal to 18, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड वी आर फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल हमें चाहिए, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल क्या होगा, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्रायंगल, तो अगर हमें रेक्टेंगल को लार्जेस्ट फॉर्म करना है, बी तो उसका एक वर्टेक्स है ही है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि हमने छोटा सा रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया, ठीक है, दैट रेक्टेंगल शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, क्योंकि हमें चाहिए एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल, सो जो हमारा लार्जेस्ट रेक्टेंगल फॉर्म होगा दैट मस्ट ऑल्सो टच द हाइपोटेन्यूज, तभी तो लार्जेस्ट बनेगा, है कि नहीं? तो इतना तो क्लियर होना चाहिए कि डायग्राम तुम जो फॉर्म करोगे उसमें दैट रेक्टेंगल शुड आल्सो टच हाइपोटेन्यूज एसी, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। अब एक बार टच कर गया, अब बाकी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है, सो यानी कि ए बी सी डी ई एंड एफ नेम कर दिया हमने। नाउ दिस एंगल हियर विल आल्सो बी 90 डिग्रीज, बिकॉज ऑब्वियसली रेक्टेंगल है, ठीक है, सो एफ ई विल बी पैरेलल टू बी डी, दिस एंगल इज 90, so that will also be 90, ठीक है, all angles are equal to 90 degrees, similarly FB, these two lines will also be parallel, now let us assume sides, क्योंकि rectangle है square नहीं है, sides assume कर लेते हैं, let us say this side BD, this is equal to x, and FB, this is equal to y,
BD is x, FB is y. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल BDEF, this will be equal to x into y, and we have to maximize area. यही एरिया एक्स वाई मैक्सिमाइज करना है. अब फर्दर कंस्ट्रेंट क्या हो सकते हैं? सो वी हैव फॉर्म्ड अ ट्रायंगल इनसाइड अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो कोशिश करो यहाँ पे देखने का सिमिलर ट्रायंगल्स. ठीक है. सो सिंस फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ए एफ ई विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी सी. क्यों होगा ऐसा? बिकॉज एंगल ए इज कॉमन इन बोथ. So this angle is common, and this angle F is right angle triangle. Right angle, and angle B is also right angle. So these two triangles are similar. अगर triangle similar है तो sides का ratio same होगा. Sides का ratio same होगा. ठीक है. So AF upon AB, this will be equal to FE upon BC. And since AB and BC both are equal to 18, so AF upon 18, this will be equal to FE upon 18, which implies that AF and FE both will be equal to same. Both will be same. AF and FE both will be equal. Now FE will be equal to x, but AF क्या होगा? AF will be 18 minus y. So basically 18 minus y, this is equal to x, and hence x plus y is equal to 18. सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 18, और हमें मैक्सिमाइज करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. तो दो वैल्यूज हैं जिनका कि सम कांस्टेंट है और हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है. तो अगेन एएमजी इक्वालिटी लगेगा क्लियरली कि अगर सम कांस्टेंट है और प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो क्या होना चाहिए? बोथ वैल्यू शुड बी इक्वल, तभी तो हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमाइज होगा, है कि नहीं? एक्स इंटू वाई मैक्सिमम कब होगा भाई? जब व्हेन बोथ एक्स एंड वाई आर इक्वल टू 9, तभी 9 टू 9 81 होगा. अगर एक को हमने कर दिया फॉर एग्जांपल 8, एक को क्या 10, तो 80 आ जाएगा. 7 11 77 आ जाएगा. तो डिक्रीज करेगा. एक मैक्सिमम तभी होगा जबकि बोथ आर इक्वल. सो एरिया मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 9 into 9, which is equal to 81 square units. So that will be our answer, 81. Is that clear? ठीक है. आंसर हमारा आ जाएगा 81 स्क्वायर यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Let ABC be an equilateral triangle with each side of length k. If a circle is drawn with diameter AB, then area of the portion of the triangle lying inside the circle क्या होगा? Portion of the triangle lying inside the circle. And ABC circle is drawn with diameter AB. Okay. So let us say this is A, this is B, and this is C. And AB is the diameter of the circle. And if AB is the diameter, so circle कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है. थोड़ा सा डायग्राम सर्कल सा नहीं लग रहा है, बट समझ लो सर्कल ही है. ठीक है. सो दिस इज अवर सेमी सर्कल एंड AB is the diameter. So midpoint of AB, let us say that is equal to D. That must be the center of the circle. So let us say this point is E, this point is F. So we've joined DE and DF also. Now AD and DB both are equal to radius of the circle. है कि नहीं? So क्या हो जाएगा हमारा साइड लेंथ, क्योंकि K है, टोटल साइड लेंथ इज K. So AD and DB will be equal to K by 2. K by 2. Then एक बात बताओ, AD and DB are radius. क्या हमारा DE and DF are also not radius? DE is equal to DF is equal to AD is equal to AB. All are equal to radius. All will be equal to K by 2. All of these will be equal. Isn't it so? And this triangle ABC, the larger triangle, is a equilateral triangle. So all angles are equal to 60 degrees. Now in triangle ADE, AD and AE are equal. So this is isosceles triangle. AD and AE are equal. So angles opposite will also be equal. And this angle will be equal to this one. So this will also be 60. दो एंगल 60 हो गए, थर्ड भी 60 हो जाएगा. लेकिन this will also be an equilateral triangle. So this will also be K by 2. This will also be K by 2. Similarly in triangle DBF, right, DB and DF are equal. So these two angles will also be equal. So this is 60. This will also be 60. So third angle will also be 60. यानी कि this will also be an equilateral triangle. So दो तो हमें equilateral triangle मिल गए. और क्वेश्चन हमसे पूछता है एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल लाइंग इनसाइड द सर्कल. एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल लाइंग इनसाइड द सर्कल, यानी कि हमें क्या एरिया चाहिए यहाँ पे?
we need this area. So basically this triangle, because this is lying inside the circle, portion of the triangle only, and then this portion, this sector of the circle, and then this triangle also. So this is the area that we require. Okay. So total area क्या हो जाएगा? We have two equilateral triangles in this case, and then one sector. Okay. And area of any equilateral triangle, second हाईलाइट से हटाना पड़ेगा तब तो जाके सॉल्व करेंगे. ठीक है. एरिया ऑफ एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल that is equal to root 3 by 4 times side length whole squared, and area of any sector if angle of the sector that is equal to theta by 360 into pi r square. That is our area of any sector. ठीक. Sector is basically pizza slice. Okay. So इस सेक्टर का एंगल क्या आएगा? टोटल एंगल इज 180 cos ADB, that is a straight line. So 60 and 60 are these angles, so remaining angle will be 180 minus 120, so this will also be 60 degrees. Now total area of this portion, area of this triangle will be equal to root 3 by 4 times k by 2 whole square. Okay, same will be for this triangle, so multiply by 2 kar do, plus area of this sector will be equal to theta by 360 यानी कि 60 by 360 into pi r square. R is also k by 2, so pi into k by 2 whole square. This will be our answer. K by 2 whole square common आ जाएगा, तो k square by 4 is common. Inside bracket this will be root 3 by 2 plus pi by 6. Okay, which becomes basically root 3 plus pi, तो k square into 3 root 3 plus pi by 24. This will be our answer. k square by 24 into 3 root 3 plus pi, ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स whose sides are 3 consecutive positive integers and a perimeter is at most 100. कितने ऐसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगे जिनका कि साइड्स आर 3 consecutive positive integers and perimeter is at most 100. ओके, सो 3 consecutive positive integers हमारे साइड लेंथ्स होंगे एंड वी नीड फाइंड आउट एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स. तो पहले तो कंडीशन समझ लेते हैं. ठीक है. सो एवरीवन नोज दैट इफ देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एंड लेट अस से साइड लेंथ्स आर ए बी सी such that A is less than equal to B, B is less than equal to C. The smallest side is A and largest side is C. So in that case, if the triangle is a right angle triangle, the largest side will be hypotenuse. So C square is equal to A square plus B square. ठीक है. अब यहाँ पे हमारा instead if the triangle is acute angle triangle, acute यानी कि all angles are less than 90 degrees. All angles are less than 90. So if all angles are less than 90, in that case क्या होगा हमारा? इमेजिन करो राइट एंगल ट्रायंगल, तुमने उसको थोड़ा सा क्योंकि राइट एंगल जो हमारा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा तुमने स्क्वीज कर दिया. स्क्वीज किया तो क्या होगा? जो साइड लेंथ हमारा सी है हाइपोटेन्यूज से छोटा हो जाएगा थोड़ा सा. इमेजिन करने के लिए, समझने के लिए. ठीक है. सो इन दैट केस सी स्क्वायर नाउ विल बी लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए और बी वैसे ही रखे तुमने, सी को थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया, एंगल को स्क्वीज किया, तो सी स्क्वायर विल बी लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बनाओगे तो क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? इंस्टेड ऑफ स्क्वीजिंग तुमने सी को और भी एक्सटेंड कर दिया, तो इन दैट केस सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इंपॉर्टेंट ये सी स्क्वायर हम बात कर रहे हैं फॉर द लार्जेस्ट साइड. ठीक है, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो हमारा होगा, इवन इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल द लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट होगा हमारा सी. ठीक है. रेस्ट ऑफ द साइड्स विल बी ए एंड बी. ठीक है. ए विल बी स्मॉलेस्ट एंड बी, चलो ए और बी को इंटरचेंज कर देते हैं बिकॉज स्मॉलेस्ट लग रहा है हमारा बेस. तो सी बी एंड ए, तो सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पर बाकी दोनों केसेस में, क्योंकि अदर एंगल्स आर, दीज टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, दीज टू आर एक्यूट एंगल्स. ठीक है. दीज आर क्यूट एंगल्स. तो क्योंकि एक्यूट एंगल्स हैं तो इनके लिए कंडीशन हमारा यही फॉलो करेगा दैट ए स्क्वायर विल बी लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर विल बी लेस देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. वैसे भी बी इज लेस देन सी, तो ऑब्वियसली बी स्क्वायर विल बी लेस देन सी स्क्वायर. सही अकेले लेस देन होगा तो ए स्क्वायर भी ऐड करो फर्दर तो लेस होगा ही होगा.
ठीक है. सो ओनली थिंग इज दैट फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द लार्जेस्ट साइड का होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. ओके. तो ये हमारा बेसिक कंडीशन है. तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें कंडीशन फॉलो करना है दैट सी स्क्वायर शुड बी, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर शुड बी लेस देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. दैट शुड बी आवर कंडीशन. ओके. एंड देन थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि तीन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट अस एज्यूम दे आर a minus 1, a and a plus 1. यू कैन ऑल्सो एज्यूम देम a plus 1, a plus 2. ठीक है. a minus 1, a plus 1 एज्यूम किया तो पेरीमीटर इन दैट केस विल बी इक्वल टू a minus 1 plus a plus a plus 1 which will equal to 3a. And perimeter is at most 100, यानी कि 3a should be less than equal to 100. Perimeter should be less than equal to 100. And if 3a is less than equal to 100, a will be less than equal to 100 by 3. But then these three are consecutive positive integers, यानी कि a must also be an integer. अब एक होना है less than equal to 100 by 3, यानी कि 13 से लेस होना है, बट इंटीजर भी है a, सो डेफिनेटली क्योंकि इंटीजर भी है तो a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 33. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 33. ओके. क्या ये क्लियर है? तो ट्रायंगल्स फॉर्म करते हैं. स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं? a माइनस 1 मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम कैन बी 1, सो 1, 2 एंड 3 इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल केस. बट क्या ये ट्रायंगल फॉर्म होगा 1, 2, 3 से? 1 plus 2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे तो लाइन फॉर्म होगी, ट्रायंगल तो फॉर्म होगा ही नहीं, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया. सेकंड केस 2, 3 एंड 4. 2, 3 एंड 4. अब कंडीशन फॉलो करानी है क्या? एक्यूट एंगल ट्रायंगल की सी स्क्वायर शुड बी लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो 4 स्क्वायर और 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कनेक्शन देखो, 4 स्क्वायर इज 16, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 13, सो दिस इज ग्रेटर देन, so this will be a obtuse angle triangle. acute तो बनेगा ही नहीं, तो this case is also rejected. Next 3, 4 and 5. So this is clearly a right angle triangle. हमारा पैथो इंटरप्रेट बन रहा है. ठीक है. 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. दिस इज a right angle triangle. अब इसके बाद में ऑर्डर चेंज हो जाएगा. नाउ वी हैव 4, 5, 6 एंड यस 6 स्क्वायर is less than 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. सो दिस विल बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल. और उसके बाद में बाकी जो हमारे ट्रायंगल्स बनेंगे, देखिए 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ऑल दीज विल बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स. क्योंकि अब हमारा सिनेरियो चेंज हो गया. लास्ट वैल्यू क्या आएगा? ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 33, तो ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? 33. एंड इफ ए इज 33, ए माइनस 1 विल बी 32, 32, 33, 34. दिस विल बी अवर लास्ट केस. दिस विल बी द लास्ट केस. ठीक है. टोटल केसेस हमारे होंगे a minus 1 can be from 3 to 32 और a can be from 4 to 33. ये एक सेकंड उल्टा कर दिया. 4 से नहीं स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होगा. फ्रॉम 5 to 33. ओके. सो टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी 33 माइनस 5 प्लस 1, क्योंकि 5 को तो इंक्लूड करना है. ठीक है. तो लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू प्लस 1, या फिर फर्स्ट वैल्यू से जो प्रेसिडिंग वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. 33 माइनस 4, तो आंसर विल बी टोटल 29 सच ट्रायंगल्स विल बी फॉर्म्ड. ऑप्शन बी इज द आंसर. क्या ये क्लियर? ठीक है. क्योंकि 5 इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड 33 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. ओके. तो ये तो एक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है कि हमें कंडीशन तो मिली गया कि पेरीमीटर 3a शुड बी लेस देन इक्वल टू 100, a शुड बी लेस देन इक्वल टू 33, और फिर हम इसके बाद में अपना कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर c स्क्वायर शुड बी लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर अ ट्रायंगल टू बी एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. एंड c इज इक्वल टू a प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो a प्लस 1 होल स्क्वायर. दिस शुड बी लेस देन a स्क्वायर. यहाँ पे a और b समझ लो, a हमारा स्मॉलेस्ट साइड था, तो दिस विल बी a माइनस 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. दिस विल बी आवर कंडीशन. एक्सपेंड कर दो तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, दिस शुड बी लेस देन a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस a स्क्वायर. a स्क्वायर एंड a स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट, तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. a स्क्वायर माइनस 4a दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि a इंटू a माइनस 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. दिस इज अवर कंडीशन. तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे 0 एंड 4. ठीक है. इफ a इज ग्रेटर देन 4 तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा.
इफ ए इज बिटवीन 0 and 4 नेगेटिव आएगा, इफ ए इज लेस देन 4 वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी कि ए शुड बी ईदर फ्रॉम -infinity to 0 और इट कैन बी फ्रॉम 4 to infinity. 4 पे इनइक्वालिटी है, ध्यान रखना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें, ठीक है. सो ए कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम -infinity to 0 और फ्रॉम 4 to infinity. ऑब्वियसली हमारा ए नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए साइड लेंथ है, क्लियरली साइड लेंथ है, और a-1 भी हमारा साइड लेंथ है, तो ए को हमारा मिनिमम 1 भी होना पड़ेगा, 1 से बड़ा भी होना पड़ेगा, तो ए शुड बी ग्रेटर देन 1. ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज साइड लेंथ है, a-1 भी साइड लेंथ है, दैट इज वाई ए शुड बी ग्रेटर देन 1. अब ए का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 4 से भी बड़ा होना चाहिए, बिकॉज 4 होगा ए तो भी 0 हो जाएगा, तो ए शुड बी ग्रेटर देन 4, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि इंटीजर है 4 से बड़ा होना है, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 33. So all values between 5 and 33 are okay. 5, 6, 7 and so on till 33. So total values will be 33 minus 5 plus 1. Last value minus first value plus 1. So that is equal to 29. Option B is the answer. Okay. Clear है बात? ठीक है. Next question. In a triangle ABC, AB is equal to AC is equal to X, and angle ABC is equal to theta, and circumradius is equal to y. Then X by Y का value क्या होगा? Let us form the triangle first. AB and AC are equal to X, and angle ABC is equal to theta. Circumradius is equal to y. Then x by y का वैल्यू क्या होगा? ठीक है. Somehow we have to connect the side lengths with circumradius. So we can connect them using the formula of area of triangle. ठीक है. Area of the triangle is equal to ABC, यानी कि product of side lengths divided by 4 times circumradius. ठीक है. Divided by 4 times circumradius, and this is also equal to 1 by 2 AB sin theta if we have been given two side lengths and angle between them is theta. ठीक है. In that case, area of the triangle is equal to 1 by 2 AB sin theta, and if three side lengths are AB and C, तो ABC by 4R. तो इन दोनों से कनेक्ट करके we can find out the ratio x by y. We can connect circumradius with the side lengths. क्या ये क्लियर है? तो इसी फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है, यहाँ पे यूज करना है. अब कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि हमें जो साइड लेंस गिवन है वो गिवन है एंगल ए के करस्पॉन्डिंग x and x, बट एंगल ए इज नॉट नोन, दिस एंगल इज नॉट नोन. तो फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो एंगल ए बी सी विल इक्वल टू एंगल ए सी बी, यानी कि दिस इज थीटा, दिस विल आल्सो बी थीटा, बोथ एंगल्स विल बी थीटा. तो थर्ड एंगल विल बी 180 minus 2 theta. This will be 180 minus 2 theta. So area of the triangle, this will be equal to 1 by 2 into AB into AC into sine of angle A, sine A. So 1 by 2 into x into sine 180 minus 2 theta, and sine of 180 minus theta, this is also equal to sine theta. Sine of 180 minus theta, that is equal to sine theta. Sine of 180 minus 2 theta will also equal to sine of 2 theta. So this becomes equal to 1 by 2 x square into sine 2 theta. And sine 2 theta is 2 sine theta cos theta. This becomes equal to x square into 2 sine theta cos theta divided by 2, यानी कि x square sine theta cos theta. ये वैल्यू हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का. अब इसको हम इक्वेट कर सकते हैं विद ए बी सी, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री साइड्स डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स circumradius is equal to y. तो इसके लिए मैं थर्ड साइड BC फाइंड आउट करना पड़ेगा. व्हाट विल बी लेंथ ऑफ BC? लेंथ ऑफ BC क्या होगा? ओके, एक मेथड ये हो सकता है कि हम ये सोच लें कि दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 by 2 इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, यानी कि एंगल साइन बी इंटू साइन बी या फिर साइन थीटा, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू थीटा.
अब इक्वेट कर लें यहाँ से, काटा पीटी मचाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ए बी तो इक्वल टू एक्स है, ए बी इज इक्वल टू एक्स, तो दिस इज बेसिकली एक्स साइन थीटा बाई टू इंटू बी सी, तो यहाँ से हमें बी सी की वैल्यू मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स साइन थीटा कैंसिल किया, एक्स कॉस थीटा, टू एक्स कॉस थीटा, बी सी इक्वल टू टू एक्स कॉस थीटा, वैल्यू हमें मिल गया। दिस इज वन वे टू कैलकुलेट बी सी। ठीक है, सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि डायरेक्टली हम अपने डायग्राम में यूज करने की कोशिश करें, ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल। ठीक है, सो इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी, लेट अस से दैट इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी, तो बी डी एंड सी डी विल ऑल्सो बी इक्वल बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो जो हम पर्टिकुलर ड्रॉप करेंगे दैट पर्टिकुलर विल ऑल्सो बी अ मीडियन। ठीक है, सो ए डी इज अवर मीडियन ऑल्सो, सो इन दैट केस बी डी एंड सी डी विल बी इक्वल, और ए डी हमारा पर्टिकुलर तो है ही है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए बी डी, in triangle ABD, if AB is equal to x, this angle is theta, तो BD is equal to x cos theta, and AD is equal to x sin theta by definition। ठीक है, या फिर ये कर सकते हो कि तुमने cos theta अप्लाई किया, cos of theta क्या होगा, cos theta will be equal to BD by x base by hypotenuse, and sin theta will be equal to AD by x। ठीक है, हालांकि मैं साइन थीटा की जरूरत तो नहीं थी यहाँ पे, हमें फाइंड आउट करना है बी डी, बिकॉज बी डी मिल जाएगा तो बी सी डबल होगा उसका, तो बी डी इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, तो यहाँ से बी सी आ जाएगा टू एक्स कॉस थीटा। तो ये एक और तरीका हो सकता है बी सी फाइंड आउट करने का। क्या क्लियर है? ठीक है, सो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो बी सी, अदरवाइज एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला से भी अप्लाई कर सकते हो। बट हमें बी सी फाइंड आउट करना क्यों था, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ए बी सी बाई फोर आर यूज करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल में इक्वेट करके, क्योंकि वहां से ही हम एक्स बाय वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज वाई वी नीड बी सी। अब सॉल्व करते हैं इसको प्रॉपर्ली। सो एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा हमें वैल्यू मिल ही गया था एरिया ऑफ द ट्राइंगल का, एक्स स्क्वायर साइन थीटा cos theta, and that should be equal to total the sides, all the sides, तो x into x, दो साइड्स तो मिल गई, और थर्ड साइड था हमारा 2x cos theta डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स सर्कम रेडियस विच इज इक्वल टू y। क्या ये क्लियर है? क्या ये इक्वेशन क्लियर है? दिस विल ऑल्सो बी एरिया। सो नाउ एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल आउट विद एक्स स्क्वायर, cos theta से cos theta कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से बचेगा यहाँ पे 2, तो sin theta बिकम्स इक्वल टू x अपॉन 2y। सो x अपॉन y इज इक्वल टू 2 sin theta, 2 sin theta, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सो आवर आंसर विल बी 2 sin थीटा। सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन में डिस्कस सारे के सारे समझ में आएंगे, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आए तो ऑल्सो गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।